السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولس گیلری. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ناولس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول قلب فریبندہ کی ایپیسوڈ نمبر 9. بہت معذرت کہ ایپیسوڈ لیٹ ہو گئی. کچھ وجوہات تھیں جو میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گی. جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے سے ریویوز بھی دیجیے گا. ناول ہے قلب فریبندہ، ایپیسوڈ نمبر ہے 9. رائٹر ہے ملائکہ رفیع. صبح اس کی آنکھ بمشکل کھلی تھی. بھاری ہوتے سر کو سنبھالتے وہ سوچنے لگا کہ رات کو وہ کب سویا تھا، جو اسے خبر بھی نہیں ہوئی. بیڈ کی دوسری سائڈ خالی تھی، ارنیکا کہیں نہیں تھی. اسے یاد آیا رات کو وہ ارنیکا کے روم میں آیا تھا. وہ کافی پی رہا تھا، وہیں بیٹھ کے وہ ارنیکا کا ویٹ کر رہا تھا اور پھر اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا. گھڑی پر نظر گئی، دن کے 11 بج رہے تھے. اوہ شٹ! اپنی گردن کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے وہ کر رہا کہ رہ گیا. واٹ دا ہیل! اس نے پھر سے ارنیکا کا نمبر ملایا تھا جو کہ ابھی تک آف تھا. وہ نیوز چیک کرنے لگا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں. ملک کے مشہور بزنس ٹائکون وجدان آذر کی بہو اور الطان وجدان کی وائف مسز ارنیکا الطان وجدان پہ رات کو قاتلانہ حملہ کرایا گیا. اطلاعات کے مطابق ارنیکا میم سیف ہیں، لیکن وہ ہیں کہاں اور قاتل کون ہے، کون قتل کرنا چاہ رہا ہے، ان کا ابھی ان سوالات کے جوابات باقی ہیں. اس سے مزید نہ دیکھا گیا. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. ڈیڈ، ڈیم اٹ! وہ دانت پیستا بیڈ سے اترا تھا. وجدان کا نمبر ملانے لگا جو بزی تھا. آئی ہیٹ یو ڈیڈ! وہ چلایا تھا اور کمرے سے باہر نکلا تھا. لاؤنج میں شمسا پریشان سی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی. ان کے چہرے پہ تفکرات تھے. اپنے دونوں ہاتھ آپس میں مسلتی وہ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی. جب الطان پہ نظر پڑی. الطان تم اٹھ گئے؟ ڈیڈ کہاں ہے؟ وہ غرایا تھا. آفس ہے. ارنیکا کہاں ہے؟ الطان، اور تم اب اٹھ رہے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پریشان ہو رہی تھی. ارنیکا کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا موم؟ ارنیکا کہاں ہے؟ رات کو وہ گھر نہیں آئی اور کسی نے مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا. ایکشن تک نہیں لیا کسی نے. وہ چلایا تھا. بیٹا مجھے نہیں معلوم، میں تو صبح... وہ کہنے لگی. زبان کی لڑکھڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی. ڈیم اٹ! یہ سب ڈیڈ کی چال ہے نا. مجھے زبردستی بیہوش کروایا گیا. ارنیکا کو کچھ بھی ہوا تو آئی سویر آگ لگا دوں گا اس بنگلے کو بھی اور آفس کو بھی. وہ کر رہا تھا. پھر سے اوپر بھاگا تھا. اسے تیار ہونا تھا. تم کیوں اٹھ کے باہر آ گئی ہو؟ ریسٹ کرو. ارنیکا کو لاؤنج میں آتا دیکھ کے بابک نے سختی سے کہا تھا. مجھے جانا ہے بابک. زینت بھی اٹھ کے اس کے قریب آئی تھی. ارنیکا بیٹا طبیعت کیسی ہے اب؟ میں ٹھیک ہوں دادو، وہ مسکرا کے بولی تھی اور پھر سے بابک کو دیکھنے لگی. مجھے جانا ہے بابک پلیز. جبکہ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنا موبائل دیکھنے لگا. نیوز دیکھی ہے؟ کیسی نیوز؟ وہ سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگی. تم پہ قاتلانہ حملہ کرنے کی نیوز. بابک اب مسکرا رہا تھا جبکہ ارنیکا حیرت سے بابک کو دیکھنے لگی. میڈیا پاگل ہو رہی ہے تمہارا پتہ لگانے میں. ارنیکا وہیں صوفے پہ سر تھام کے بیٹھ گئی. اب آئے گا سامنے قاتل، ہائر سوسائٹی کے سو کال شریف زادے. وہ کہتا چائے کے گھونٹ پینے لگا جبکہ ارنیکا اچانک سے اٹھی تھی. مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہوگا. میں یہاں نہیں رہ سکتی بابک پلیز. بابک اپنی جگہ سے اٹھ کے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا. کہاں جانا چاہتی ہو تم؟ ان قاتلوں کے بیچ جو تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. وہ چلایا تھا جبکہ ارنیکا کی آنکھیں بھیگی تھی. الطان مجھے قتل نہیں کروا سکتا، کبھی نہیں. وہ رو پڑی تھی جبکہ بابک نے گہرا سانس لیا تھا. بابک بچی کو ڈرا رہے ہو، تم پاگل ہو. وہ خاموش رہا جبکہ زینت بیگم ارنیکا کو لیے صوفے پہ بیٹھ گئیں. تو میں کون سا زبردستی کر رہا ہوں آپ کی اس معصوم بچی سے؟ باہر پتہ بھی ہے کیا چل رہا ہے؟ بچی نکل گئی ہے ان کے ہاتھ سے. میرے کار میں بیٹھنے کے بعد بھی گولیاں چلی تھی، لیکن میں کار کو فل اسپیڈ پہ کر کے وہاں سے نکلا تھا تاکہ ارنیکا کو کچھ نہ ہو. اوپر سے طبیعت خراب ہے، اس کی ویکنس دیکھ رہی ہیں آپ اس محترمہ کی. پتہ نہیں چل سکا ابھی تک کہ قاتل کس نے بھیجے تھے آپ کی بچی کے پیچھے، اور آپ کی بچی کے باہر جاتے ہی قاتل پھر سے الرٹ ہو جائے گا. عقل نہیں آپ کی بچی کو کہ اس کی جان خطرے میں ہے. وہ جھنجھلایا ہوا تھا اور ارنیکا بھیگی آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہی تھی.
जब वो चुप हुआ तो अर्निका ने उसे घूरी से नवाजा। आराम से बात नहीं कर सकते, चिल्लाना जरूरी है। बाबक उसकी बात पे कंधे उचका गया, जबकि जीनत बेगम ने उसे साथ लगाया। अर्निका बेटा, ये तुम्हारा ही घर है मेरी जान, तुम यहीं रहो जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। कितनी वीक हो गई है मेरी बच्ची, जीनत बेगम नरमी से कह रही थी। बाबक ने लब खींचे थे उनकी मोहब्बतें देख के। मॉर्निंग, इतनी जल्दी में मुझे क्यों? नूरा जो बात करती अंदर आ रही थी, अर्निका पे नजर पड़ते ही उसकी बोलती बंद हो गई थी। वो हैरत से अर्निका को देख रही थी, फिर उसकी नजर बाबक पे गई जो लब भींचे उसे ही देख रहा था। दिल डूब के उभरा था उसका। अर्निका ने उन आंखों में वो दर्द पढ़ लिया था जो अचानक से अर्निका को वहां देख के उभरा था। अच्छा हुआ तुम आ गई नूरा, मोहतरमा का चेकअप कर लो। बापक ने ही खामोशी तोड़ी थी। वो खामोशी से अर्निका को देख रही थी। उसकी अजीब कैफियत हो रही थी। आओ अर्निका, रूम में चलते हैं, नूरा डॉक्टर है, चेक कर लेगी तुम्हें। जीनत बेगम उसे उठाते खुद भी उठ खड़ी हुई थी। वो दोनों रूम की तरफ गई थी, जबकि नूरा वहीं खड़ी बाबक को देख रही थी। ले ही आए तुम अर्निका को अपने पास बाबक। उसकी आंखें नम थीं, शिकायत थी उसके लहजे में। नूरा प्लीज शुरू मत हो जाना तुम अब, जाओ चेकअप करो उसका। बाबक ने नरमी से कहने की कोशिश की। नूरा कुछ देर उसे नम आंखों से देखती रही और फिर सर झटक के वहां से आगे बढ़ गई। कमरे में अर्निका अकेली ही थी। जब नूरा अंदर आई थी, वो इधर उधर देखने लगी तो अर्निका को ही बात करनी पड़ी। दादू किसी काम से गई हैं? नूरा हिचकिचाहट कर शिकार हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बात करे वो अर्निका से। मेरा चेकअप नहीं करोगी नूरा? अर्निका उसे गौर से देखती मुस्कुरा के पूछ रही थी, जबकि नूरा उसकी मुस्कुराहट से नजरें चुराने लगी। करती हूँ। वो अर्निका के करीब बैठी थी बेड पे। उसके चेहरे पे हल्की खराश और जख्म थे जो रोड पे भागते हुए गिरने की वजह से आई थी। मुझे लगा था तुम दोनों ने शादी कर ली होगी अब तक। अर्निका की बात पे उसके हाथ रुक गए थे। तुम जो बता रही थी कि तुम और बाबक बहुत जल्द शादी करने वाले हो, मुझे लगा था कि कर ली होगी। उसके चेहरे पे अब भी मुस्कुराहट थी, जबकि नूरा नजरें चुरा गई। तुम तो खुश हो रही होगी कि नहीं हुई शादी हमारी। तुमसे छीनने की कोशिश जो कर चुकी मैं बाबक को, और आज तक बाबक ने मुझे नहीं अपनाया। नूरा की आंखों में तंज और गुस्सा था। अर्निका मुस्कुरा पड़ी। नहीं, मुझे दुख हुआ इस बात का। आई विश की शादी हो जाती तुम दोनों की। नूरा उसे ही देख रही थी। सब नसीब की बात होती है नूरा, और वैसे भी वो यूनी लाइफ थी, मैं तो वो सब भूल भी गई हूँ। अर्निका ने नर्म लहजे में कहा था। फिर से क्यों आई हो यहाँ अर्निका? नूरा का लहजा अब भी सपाट था, आंखों में तंज था अभी भी। मैं यहाँ नहीं आना चाह रही थी नूरा, मुझ पे मर्डर अटैक हुआ है तभी मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं चली जाऊंगी वेरी सून। नूरा के मुकाबले में अर्निका का लहजा नरम था। कर लिया चेकअप नूरा? जीनत बेगम अंदर आई थी और उन्हें यूं बैठे देख के पूछने लगी। जी कर लिया चेकअप नूरा ने। अर्निका ने मुस्कुरा के जवाब दिया था, जबकि नूरा उसे ही खामोशी से देख रही थी। बहुत वीक है अर्निका। नूरा विटामिन लिख दो कुछ मेरी बच्ची के लिए। नूरा ने अस्पात में सर हिलाया था। और ये खराश और जख्म के लिए कोई टैबलेट? जीनत बेगम ने फिर से कहा था जब अर्निका चौंकी थी। नहीं, कोई टैबलेट नहीं। क्यों? जीनत बेगम चौंक के उसे देखने लगी, जबकि वो नजरें चुरा के सर झुका गई। आई एम प्रेग्नेंट। अरे माशाल्लाह मेरी बच्ची, माशाल्लाह। जीनत बेगम उसे प्यार करती बोली, जबकि नूरा फिर से उसे देख रही थी। जो कुछ कर चुकी थी माजी में, वो अब कहाँ खुद को नजरें मिलाने के काबिल समझती थी। मुबारक हो अर्निका, नूरा ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश करते कहा था। जवाबन अर्निका भी मुस्कुरा पड़ी थी। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, टाइम पे लेती रहना। वो कुछ लिख रही थी और साथ ही अर्निका को भी बता रही थी। जीनत बेगम ने वो पेपर उसके हाथ से ले लिया था। मैं अभी मंगवाती हूँ, तुम दोनों बातें करो, कहकर वो जा चुकी थी और फिर से खामोशी छा गई थी, जिसे नूरा ने ही तोड़ा था। प्लीज पापा को कुछ मत बताना, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। हम्म। वो अस्बात में सर हिलाती सर बैठ के ग्राउंड से टक टेक गई कि वो थक गई थी भागते भागते, सोचते सोचते।
खुद को संभालने की कोशिश में वो बेहद थक चुकी थी। नूरा उसे देखे गई कि वो जो अर्निका को अपनी और बाबा की झूठी मोहब्बत और झूठी शादी की कहानी सुना के उसे निकाल फेंका था बाबा की लाइफ से, उसे आज भी याद था वो दिन। वो भयानक दिन जो 2 जिंदगियों को बर्बाद कर गया था। 2 जिंदगियों को, पापक और अर्निका को। बाकी सब अपनी जगह वैसे ही थे। माजी उसके लब मुस्कुरा रहे थे। पापक की उन बोतली आंखों का सोच के अर्निका की आंखें तक मुस्कुरा रही थीं। मोहब्बत दोनों को थी, धड़कनें दोनों की ही एक दूसरे का नाम अलाप रही थीं, लेकिन अल्फाज थे कि मिल नहीं रहे थे अपने एहसासात को बयान के लिए। लेकिन आज अनिका ने सोच ही लिया था कि बाबा को अपनी बर्थडे पे इनवाइट करते हुए दिल में पनपते उन एहसासात को भी अल्फाज का नाम दे ही देगी। अब मजीद खुद को रोकना, एहसासात को दिल के नेहा खानों में दफन करके रखना अब नामुमकिन था। वो शख्स जो मुकम्मल उसके पूरे वजूद पे बसेरा कर चुका था, जिसकी बोलती आंखों से उसके जज्बों को वो अब तक पढ़ पा रही थी, अब नामुमकिन था। अब खामोश अल्फाज को आवाज ना देना, उस अनकही मोहब्बत को अल्फाज का पैरहान देना था उसे। अपनी बेबाक होती धड़कनों को थपकी देती वो आगे बढ़ रही थी। उसका रुख लाइब्रेरी की तरफ था, जहां बाबक के होने का 100% चांस था, जब अचानक नूरा उसके सामने आई थी और उसे रुकना पड़ा था। सवालिया नजरों से वो नूरा को देखने लगी। नूरा, तुम कब आई यहाँ? मैं बस अभी अभी। कहाँ जा रही थी तुम? जांचती नजरें अर्निका के मुस्कुराते चेहरे पे थी। मैं उसकी आंखें चमकने लगी। मुझे पापक से बात करनी थी, ये कह के वो आगे बढ़ने लगी, जब नूरा ने फिर से उसके सामने आके उसे रोका था। बाबा को कुछ भी बताने से पहले मेरी बात सुन लो। अनिका, मैं और बाबा बचपन से निकाह में हैं एक दूसरे के। मतलब हमारा बचपन का निकाह हो चुका है और हम बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। बस पापा की स्टडीज़ और मेरी स्टडीज़ कंप्लीट होते ही, और हम एक दूसरे से इस बात का इजहार भी कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इवन बाबा कह रहा था कि अभी से हम अपने वेडिंग ड्रेसेस के ऑर्डर्स भी दे दें। कुछ टूटा था। उसकी किर्चियाँ बहुत जोर से चुभी थी अर्निका के दिल में। उसका पूरा वजूद छलनी हो गया था और शहद रंग आंखों में आंसू मोतियों की तरह चमके थे, जिसे देख के नूरा को सुकून सा उतरता महसूस हुआ था अपने दिल में। हम सरप्राइज देने का सोच रहे थे सबको, लेकिन मुझे लगा कि अभी बता देना ज़रूरी है तुम्हें, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम इतनी आगे बढ़ जाओ कि अपने आप खुशफहमियों में कि फिर टूट ही जाओ। अनिका लड़खड़ा के पीछे हुई थी, लेकिन निगाहें अभी भी नूरा के चेहरे पे थी। जिस अजियत और कर्ब से वो गुजर रही थी, नूरा उस लम्हे अगर उस अजियत और कर्ब को महसूस कर लेती तो शायद वो उस नाजुक लड़की का दिल तोड़ने की कभी कोशिश ना करती। वो यतीम थी जिसका नाजुक सा दिल गमों की आमाज का बन चुका था, लेकिन बाबक का वजूद उसे अपने हर जख्म पे मरहम सा महसूस हुआ था, जिसे नूरा उस लम्हे छीन गई थी। उसने बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की थी। मुबारक हो नूरा, बहुत खुशी की बात है ये तो, वो मुस्कुरा के कहते आगे बढ़ी थी। दिल था कि अथाह गहराइयों में डूब रहा था, लेकिन अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालती वो आगे बढ़ रही थी। उसकी नज़र सामने रुक गई जहाँ से बाबक आ रहा था। वो काफ़ी अजलत में लग रहा था। जब अर्निका पे नज़र पड़ते ही वो रुक गया था। दिल की धड़कन बढ़ी थी और लब हंसकर हल्का सा मुस्कुराए थे। उसे आज बताना था अर्निका को कि वो किस कदर चाहता है उसे, और कब से ये भी वो बताना चाह रहा था आज अर्निका को, कि अब मजीद ये आंख मचोली का खेल उसकी अर्निका के लिए बेताबियां बढ़ा रहा था, और वो जल्द से जल्द अपने और अर्निका की इस आंख मचोली को तमाम करके इस खूबसूरत रिश्ते को मुकद्दस बंधन में बांध देने का इरादा रखता था। दोनों आमने सामने रुके थे। शहद रंग आंखों में मौजूद नमी उसकी आंखों को गुलाबी माइल कर रही थी। बाबक ने बेहद उछंबे से उन नम आंखों को देखा था। क्यों? अर्निका के लबों पे सवाल उभरा था, जबकि आंखें शिकवा कना थी। जब हकीकत ही कुछ और थी तो मेरी आंखों को क्यों ख्वाब दिखाए बाबक? मानती हूँ कि जबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन फीलिंग्स को समझने के लिए आंखों की बोली काफ़ी होती है। और मुझे लगा कि वो रुकी थी। बाबक की हैरान आंखों में देखती वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बात कहकर उसने अपने गले में आंसुओं के गोले को निकलने की कोशिश की थी। बट खैर, फिर भी मैं ये चाहूंगी कि तुम नूरा के साथ शादी करके खुश रहो हमेशा। ये कह के उसने दो कदम पीछे लिए थे, बावजूद कोशिश के भी आंख से नमकीन पानी उसके गाल पे फिसला था। दिल गहरी खाई में डूब के उभरा था। बाबक ना समझी से उसे ही देख रहा था। अर्निका, मैं वो कहना चाह रहा था,
میں اپنی اور الطان کی شادی پر انوائٹ ضرور کروں گی۔ نورا کے ساتھ آ جانا، مجھے خوشی ہوگی۔ وہ کانپتی آواز میں اپنی بات کہہ کے رخ موڑ گئی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ دل تھا کہ اس قدر غم و طوفان کے اتھا گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا کہ ایک پل کے لیے بھی آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پارکنگ ایریا میں پہنچ کے اس کا سامنا الطان سے ہوا تھا، جو تیزی سے اس کا کندھا تھام کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ارنیکا بھیگی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھنے لگی، جبکہ ساتھ پھوٹ پھوٹ کے رو بھی رہی تھی۔ ارنیکا، کیا ہوا ہے؟ الطان کے پوچھنے پہ اس کی مزید ہچکیاں بن گئی تھی۔ تم اس دن کہہ رہے تھے نا کہ الطان تم مجھے پروپوز کر رہے تھے، اس دن تمہیں یاد ہے نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ الطان نے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ اور تم نے انکار کر دیا تھا۔ الطان کے جواب پہ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں میں شادی کر رہی ہوں تم سے۔ ارنیکا کے جواب پہ وہ حیران ہوا تھا، جبکہ ارنیکا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ الطان نے اسے بازوؤں کے گھیرے میں بھر لیا تھا اور وہ الطان کے سینے سے لگی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی، جبکہ الطان کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ اسی نے ہی تو نورا کو کال کر کے یہاں بلایا تھا، کیونکہ ارنیکا اسے بتا چکی تھی کہ وہ بابا کو اعتراف کرنے جا رہی ہے کہ وہ اس سے بے حد محبت کرتی ہے، اور یہیں الطان اور نورا نے مل کے ارنیکا کو بابا کے بیچ غلط فہمی پیدا کرنے کا سوچا تھا، اور وہ کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ جبکہ فاصلے پہ کھڑا بابک نم آنکھوں سے ارنیکا کو الطان کی باہوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ چونکی تھی، گہرا سانس لیتی وہ اپنا سر چھٹک گئی تھی۔ وہ جو کچھ بھی کر چکی تھی اس کے بدلے میں وہ آج بھی خالی ہاتھ تھی۔ آج بھی وہ بابک کو اپنا بنانے کی خواہش میں جی رہی تھی اور مر رہی تھی۔ واقعی برائی کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے۔ وہ غصے سے تن فن کرتا آفس بلڈنگ میں داخل ہوا تھا، جب میڈیا نہ جانے کہاں سے اس کے سامنے آئی۔ سر سر ارنیکا میم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں کچھ بھی ہو ریسپانسبل آپ ہوں گے۔ ویئر از ارنیکا؟ جب سیکیورٹی نہیں دے سکتے اپنی وائف کو تو شادی ہی کیوں کی؟ دوسری شادی کر کے اپنی پہلی بیوی کو بھول گئے تھے۔ الطان نے لب بھینچے سب کو دیکھا تھا۔ نو کمنٹس۔ وہ آگے بڑھا تھا، لیکن میڈیا کہاں چپ رہنے والی تھی۔ وہ پھر سے اس کے پیچھے پیچھے آئے تھے۔ سر ہمیں جاننا ہے ارنیکا میم کہاں ہے؟ اور اچانک الطان نے غصے سے کچھ رپورٹرز کی مائک توڑ کے پھینک دی تھی۔ کچھ کے کیمرے، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ غصے سے دھارتا آگے بڑھا تھا اور گارڈ نے آ کے انہیں روکنے کے لیے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا الطان دھار سے آفس کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تھا، جہاں کچھ بزنس مین وجدان آذر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ الطان، واٹ از دس بہیویئر؟ وجدان لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایوری ون آؤٹ، وہ سب کو دیکھتا آؤٹ بدتمیزی سے چلایا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے باہر نکلنے لگے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے الطان؟ وجدان غصے سے چلاتا اس کے قریب آیا تھا۔ ویئر از مائی وائف؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتا الطان چلایا تھا۔ مجھے کیا معلوم تمہاری وائف کا؟ وجدان نے غصے سے جواب دیا تھا۔ شٹ اپ، میری بیوی کہاں ہے؟ اس نے غصے سے ٹیبل کو ٹھوکر ماری تھی۔ تم تم پاگل ہو گئے ہو الطان، مجھے نہیں معلوم ارنیکا کا۔ انفیکٹ صبح سے میں خود میڈیا، اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتے الطان نے پوری ٹیبل الٹ دی تھی، جو چکنا چور ہو کے کانچ ارد گرد پھیل گئے تھے۔ وجدان پہلی بار اپنے بیٹے کا یہ پاگل بن دیکھ رہے تھے۔ آگ لگا دوں گا آپ کے آفس اور بزنس کو۔ ڈیم اٹ، ارنیکا کہاں ہے؟ ویئر از شی؟ آپ نے اس پہ قاتلانہ حملہ کروایا۔ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ ہاؤ کین یو؟ وہ چلا رہا تھا۔ تم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو کہ میں نے ارنیکا کو غائب کروایا ہے؟ الطان نے انہیں کالر سے جکڑا تھا۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ آپ اسے قتل کروائیں گے۔ میری بیوی کہاں ہے ڈیڈ؟ ٹیل می رائٹ ناؤ۔
वजदान ने अपना कॉलर छुड़ाते गुस्से भरी निगाहों उस पर डाली थी। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम अपने बाप से? कॉलर छोड़ो। अल्तान ने झटके से उनकी कॉलर छोड़ दी थी और खुद गहरा सांस लेता खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। और फिर वजदान को देखने लगा। डैड, अर्निका कहाँ है? क्यों मर्डर करवाना चाह रहे थे आप उसका? कहाँ है वो अब? वजदान ने तासुफ भर निगाह उस पर डाली थी। ये सच है कि मैंने ऐसा सोचा हुआ था, लेकिन ये भी सच है कि अर्निका पे मर्डर अटैक नहीं करवाया मैंने, और मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठे हैं आप। झूठ है आपकी पूरी लाइफ। अपनी बीवी, अपने बेटे से झूठ बोलते आ रहे हैं आप हमेशा। ये बैंक बैलेंस, ये बंगला, आपकी ये पार्टीज, आपकी वो गर्लफ्रेंड्स, आपके अफेयर्स, दोखले इंसान हैं आप। वो दहाड़ता फिर से वजदान के करीब आया था। अगर अनिका को कुछ भी हुआ, कुछ भी, उसमें आपका ज़रा सा भी हाथ हुआ तो मैं आपको बर्बाद करके रख दूंगा। इज़ दैट क्लियर? वो हलक के बल चीखा था। वजदान लब भींचे उसे देख रहे थे। वो फिर से मुड़ा था जब अंदर आती जाले से सामना हुआ। अल्तान, वो चेहरे पे परेशानी लिए उसके करीब आ रही थी। शट अप। अल्तान उसे घूरता कमरे से निकल गया था। जाले वजदान को देखने लगी। अर्निका का दुश्मन और कौन हो सकता है जो अर्निका को ख़त्म करना चाहता है? वजदान अपनी कनपटी सहलाते सोफे पे बैठ चुके थे। जाले उन्हें ही देख रही थी। कुछ पता चला अर्निका का? नो, न्यूज़ में यही बता रहे वो सेफ है, लेकिन कहाँ है कुछ नहीं मालूम। वजदान कंधे उचका गए। अल्तान क्यों गुस्से में था? जाले भी उनके पास ही बैठ गई। उसे लगता ये सब मैंने करवाया है, वजदान तासुफ से बोले थे। जाले की आंखों में हैरत उभरी थी। काश मैं ही करवाता ये सब। पक्का पक्का उसे इस दुनिया से उठवा देता। वो फिर से गुस्से से चिल्लाए थे, जबकि जाले खामोशी रही थी। अर्निका साकित नजरों से टीवी स्क्रीन देख रही थी, जहां बार बार अल्तान की फुटेज दिखाई जा रही थी जिसमें वो मीडिया पर हमला करता है। शट अप, शट अप ऑल ऑफ यू। क्लिक से टीवी ऑफ हुआ था। उसने चौंक के बाबक को देखा था और फिर घूरी से भी नवाजा था। बंद करो ये सब देखना, तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, वो कहते सोफे पे बैठ चुका था। मुझे अल्तान से मिलना है, अर्निका ने तेजी से कहा था। नहीं मिल सकते फिलहाल किसी से, बाबक ने नफ़ी में सर हिलाया था। उफ, कैदी बना के रखा हुआ है मुझे यहाँ। वो झंझलाई थी। ओ मोहतरमा, तुम्हारा ही हस्बैंड है वो, मिलने ना फुर्सत से, पहले सब नॉर्मल हो जाने दो, तुम्हारी जान को खतरा है। बाबक की बात पे वो फिर से उसे घूरी से नवाज गई थी। बाबक ने गहरा सांस लिया था। अर्निका, देखो, रिलैक्स रहो, ये तुम्हारा ही घर है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम और तुम्हारा बेबी सेफ रहे? अर्निका ने इस्पात में सर हिलाया था। चाहती हूँ, बस तो अभी सब नॉर्मल होने दो। अल्तान के साथ उसकी फैमिली सिंसियर नहीं है। अर्निका की परेशान आवाज़ उभरी थी। अल्तान तुम्हारे साथ सिंसियर है? बाबक के सवाल पे वो खामोश सी सर झुका गई। ये जो तुम्हारा नाजुक सा दिल है जो किसी को परेशान या मुश्किल में नहीं देख सकता, इसे थोड़ा सुकून से रहने दो। कुछ नहीं होता किसी को, अपनी फिक्र करो, दूसरों की टेंशन ना लो। और तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि उस फैमिली से बाहर आई हो। जान छूटी है तुम्हारी उनसे। अच्छा है तुम्हारे उस हस्बैंड को अकल आए, अपनी गलतियां सुधारे। थोड़ा तो एहसास हो उसे कि वो क्या गलत कर चुका है तुम्हारे साथ। पापा को उसे समझा रहा था। वो नजरें उठा के उसे देखने लगी। आंखें नम थी। मैं अल्तान के साथ नहीं चाह रही बाबक, ना उसके साथ आगे की ज़िंदगी में जीना चाहती हूँ। मुझे बस फिक्र हो रही थी। मुझे यहाँ से दूर जाना है, बहुत दूर, जहाँ मुझ तक, मेरे बेबी तक कोई ना पहुँच सके। उसने भर्राई आवाज़ में अपनी बात कही थी। वो ही होगा जो तुम चाहोगी। सब ठीक हो जाएगा, तुम रिलैक्स रहो अभी। अपना ख्याल रखो यार, प्लीज़। वो बिल्कुल किसी अच्छे दोस्त की तरह उसे समझा रहा था और अर्निका मुस्कुरा दी थी। अब मुस्कुरा के क्या देख रही हो? बाबक ज़ेरे लब मुस्कुराता पूछ रहा था, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाती मज़ीद मुस्कुराई थी। सुकून का एहसास हो रहा। आज बहुत अरसे बाद पहली बार लग रहा कि झूठ और दोगलेपन के बीच रहते जो खोल सा बन गया था मेरे गिर्द, जो बोझलपन मेरे वजूद में था, वो सब मिट रहा है। अब पुरसुकून हो रही हूँ। थैंक यू बाबक, हमेशा एक अच्छा दोस्त बनने के लिए।
अर्निका मुस्कुरा के कह रही थी। बाबक भी मुस्कुरा पड़ा था। खुश रहो हमेशा अर्निका, बोझल लहजे में कहता वो अर्निका को ही देख रहा था और अर्निका नजरें चुरा गई थी कि इस एक लम्हे में पूरी यूनी लाइफ आंखों के सामने घूम गई थी। बाबक भी सर झटक के अपनी नजरें फेर चुका था कि दिल की आवाज पे लब्बैक कहता वो अर्निका को उन अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। गाड़ी बंगले में दाखिल करते उसकी नज़र वहां मौजूद पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद कुछ लोगों पे पड़ी, जिनके साथ वजदान भी खड़े थे। गाड़ी झटके से रोक के वो नीचे उतर के उनकी तरफ आया था। मिस्टर अल्तान, यू आर अंडर अरेस्ट, पुलिस ऑफिसर ने इनायत ने उसे देखते कहा था, जबकि वो माथे पे बल डाले उसे देखने लगा। व्हाट डू यू मीन? मुझे क्यों अरेस्ट करेंगे आप? अपनी बीवी पे मर्डर अटैक के जुर्म में, ऑफिसर इनायत फिर से बोला था। व्हाट द, वो चिल्लाया था। डैड, आने कैसे दिया आपने इन्हें अंदर? वो वजदान की तरफ देख रहा था, जबकि वो कंधे उचका गए थे। पुलिस को आने से कौन रोक सकता है बेटा? और वैसे भी मैं खुद शॉक्ड हूँ कि मेरा बेटा अपनी ही बीवी का कत्ल करना चाह रहा। डैड, ये क्या कह रहे हैं आप? वो गुस्से से चिल्लाया था। मिस्टर अल्तान, काम डाउन एंड हमारे साथ ताउन करें। प्लीज़ हमारे साथ चलिए आप। ऑफिसर इनायत उससे मुखातिब हुआ था, जबकि वो बिदक के पीछे हुआ था। मैं कहीं नहीं जा रहा, वो चिल्लाया था जब शमसा बाहर आई थी। पुलिस यहाँ क्यों आई है? वो हैरत से इधर उधर देख रही थी। हमारे बेटे अल्तान को लेने आई है पुलिस, हमारी बहू को कत्ल करने की कोशिश में। वजदान निहायत पुरसुकून अंदाज में बात कर रहे थे। क्या बकवास है ये? मेरा बेटा अपनी बीवी का कत्ल कैसे हो सकता है? आप लोग मेरे बेटे को कहीं नहीं ले जा सकते। वो तेज आवाज में बोलती आगे बढ़ी थी। मिसेस वजदान, प्लीज हमारे साथ ताउन कीजिए, हमारे काम में रुकावट मत डालिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। ऑफिसर इनायत बेहद एहतराम से बात कर रहा था, जबकि शमसा गुस्से से उसे देखने लगी। जब मेरे बेटे ने कुछ किया ही नहीं है तो कैसे आप उसे ले जाएंगे? वजदान, कुछ बोलो, ये हमारे बेटे को अरेस्ट कर रहे हैं। वजदान कंधे उचका गए। मैं कुछ नहीं कर सकता शमसा, मैं एक्चुअली शॉक्ड हूँ। वो इत्मीनान से बोले थे। तुम अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शमसा शॉक्ड कैफियत में उन्हें देख रही थी। बिक चुके हैं आपके हस्बैंड मुकम्मल, अल्तान ने हकारा से उन्हें देखते कहा था। रिश्तों की पहचान न कभी इन्हें थी न कभी होगी। वो नफरत से फंकारा था जब शमसा अपने बेटे के करीब आई थी। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, मैं लॉयर से बात करती हूँ, जबकि पुलिस अल्तान को ले जाने लगी। चलिए सर। अल्तान एक नफरत भरी निगाह वजदान पर डाल के उनके साथ बाहर निकला था, जबकि वजदान पैंट पॉकेट्स में हाथ डाले अपनी जीत की मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए खड़े थे। एक बाप ने अपने ही एक बाप अपने ही बेटे का दुश्मन हो चला था। कैसी लगी आज की एपिसोड? माजरत के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पहले चैनल नॉवेलिस्तान पे ऑब्जेक्शन आ गए यूट्यूब की तरफ से, जिसकी वजह से मुझे ही दूसरा चैनल बनाना पड़ा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को भी उतना ही सपोर्ट और उतना ही प्यार दें। तमाम नॉवेल्स आज से इस चैनल पर पोस्ट होंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सिर्फ देखकर गुजर नहीं जाएं, वे एपिसोड्स पढ़ के आप गुजर नहीं जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलामुअलैकुम।